Hello everyone. So since the results of NEET PG 2025 are already out, and I just wanted to address the elephant in the room, which is basically MDMS versus DNB. What is DNB? थोड़ा सा brief में कि DNB क्या होता है and what is the basic difference between MDMS courses and DNB. So the basic funda of the whole video would be medical ergonomics, which is basically you need to choose the place according to the person. दैट लिटरली मीन्स कि हर इंसान के लिए डिफरेंट जगह डिफरेंट ब्रांच बेस्ट होती है. इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल कि हाँ एक ब्रांच एक बंदे को के लिए ही है या फिर वाइस एंड वर्सा कि एक बंदा एक ब्रांच के लिए बना है. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट्स वेरी स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो बेसिकली हमारे पास दो बॉडीज़ हैं. फर्स्ट बॉडी इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन एंड सेकंड बॉडी इज़ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज. सो एनएमसी का जो मेन रोल होता है इज एक्चुअली टू गवर्निंग ऑफ ऑल द मेडिकल कॉलेजेस, एंड एनबीएमएस का जो मेन रोल होता है इज एक्चुअली टू कंडक्ट ऑल द एग्जामिनेशंस which are there in the medical field specifically, right? It's like NEET PG, NEET SS, right, etc. सो ये दोनों ही बॉडीज़ हमारी नेशनल बॉडीज़ हैं. ठीक है, दैट मीन्स दीज आर दी वंस जो मेडिकल फील्ड को गवर्न करते हैं. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ऑब्वियसली बिकॉज आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक टर्मिनोलॉजीज बिटवीन व्हाट इज एमडीएमएस एंड व्हाट इज डीएनबी. सो एमडीएमएस इज बेसिकली मास्टर्स ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर्स इन सर्जरी, वेयर एज डीएनबी इज डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड. सो देर इज अ टर्म डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड. डिप्लोमा is basically what is a 2-year course, right? So it's a 2-year course. Example, diploma in obs and gynae is known as DGO, and diploma in radiology is DMRD. So that's a 2-year course. Once you complete that 2-year course, you are eligible to do a DNB, which is known as a secondary DNB, which is again for 2 years. So after you complete the diploma, you can do or you cannot, ये आपके ऊपर होता है. You can do a 2-year DNB, which is basically a secondary DNB. So total is duration 4 years हो जाता है. Whereas if you talk about MDMS and DNB, both of these courses are basically of 3 years, right? That's why the first important thing, and that's why this is known as diplomate of national board. Just like US में आपका होता है ना, this is board certified doctors. Exactly India के अंदर board certified doctors are basically DNB graduates, right? So this is diplomate. Okay, so the degree of MDMS is awarded obviously by NMC, right? Whereas DNB की जो डिग्री है वो NBMS award करता है, the National Board of Examination in Medical Sciences, right? ये recognition both MDMS and DNB are recognized both India and abroad. This is not something which is very new. ठीक है, MDMS का सबसे बड़ा डिफरेंस है इट इज डन इन हॉस्पिटल्स विच आर एफिलिएटेड विद मेडिकल कॉलेजेस, राइट? वेयर एज DNB is done in hospitals which are not affiliated to medical colleges per se. So basically it's done in मतलब any hospital which is not affiliated to a medical college. So example, which can be both government as well as private hospitals, right? So this is the only basic difference कि MDMS उन colleges में hospitals में की जाती है जहाँ colleges के साथ association है, and that is why वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी एकेडमिक्स जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू इन DNBs, बिकॉज वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं है तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है एज कम्पेयर टू MDMS, राइट? फिर रिकॉग्निशन एज ऑलरेडी सेड, ये तो बोल दिया. परसेप्शन, या सो MDMS का जो परसेप्शन है इट इज़ मोर ऐसा परसीव किया जाता है थ्रू आउट दी सोसाइटी, एंड जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक्चुअली बस दे जस्ट थिंक दैट MDMS इज मोर प्रेस्टिजियस एंड DNB इज लेस प्रेस्टिजियस. दिस इज द थिंकिंग विच हैज़ बीन there since forever, and that's why people more prefer see MDMS as a superior course as compared to DNB, which is not true. So this is just a perception, but reality में ये सब सेम है. कैरियर स्कोप एग्जैक्टली सेम है, दोनों का कैरियर स्कोप एग्जैक्टली सेम है, तो देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन देम, इंक्लूडिंग टीचिंग, गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट प्रैक्टिसेस, राइट? So फर्स्ट चीज ये this is exactly a screenshot which is taken from the NMC guideline 2021, ठीक है, which states the equivalence of MDMS which is equivalent to DNB. So इन्होंने exactly same चीज बोली क्या कि MDMS का इक्विवेलेंस विद DNB तब प्रूव होगा इफ द फर्स्ट क्लॉज स्टेट्स दैट अगर आपने अपनी DNB की कोर्स उस हॉस्पिटल से किया है जो NMC ने रिकॉग्नाइज किया है, विच इज ऑब्वियसली इफ यू आर एंटरिंग थ्रू NEET PG, ऑब्वियसली एनी कोर्स जो DNB करवा रहा है वो सब NMC का रिकॉग्नाइज है, तो ये तो रूल है ही है. छोड़ो, आते हैं क्लॉज 4.2, 4.3 एंड 4.4 पे. 4.2 कहता है अगर आपने अपना DNB उस हॉस्पिटल से किया है जिसके बेडेड मतलब विच इज मोर देन इक्वल टू 500 बेडेड हॉस्पिटल, तो आप जैसे ही आपका DNB खत्म होगा आप इक्विवेलेंट होगे MDMS के. 4.3 कहता है अगर सपोज आपने अपना DNB 100 से 500 बेडेड हॉस्पिटल से किया है, ठीक है, तो आप
1 साल की एसआरशिप करने के बाद आप इक्विवेलेंट हो गए टू एमडीएमएस, राइट। वेर एज अगर आपने अपना डीएनबी लेस देन इक्वल टू 100 बेडेड हॉस्पिटल से किया है, देन आपको कम से कम 2 साल की एसआरशिप करनी पड़ेगी टू बी इक्विवेलेंट टू एन एमडीएमएस। तो बात खत्म। दिस इज द इक्विवेलेंस रूल कि कब आप एमडीएमएस की इक्विवेलेंट माने जाओगे। अगर 500 बेड से ज्यादा किया तो देर इज नो ड्रामा ऑफ एसआरशिप, यू आर एक्चुअली इक्विवेलेंट डायरेक्टली। So this is according to the NMC 2021 guidelines. Okay. So I have 2 slides for very simple rule how to actually choose your branch, how to actually go about counseling पे अलग एक ड्रामा होता है, but the basic rule applies to the same. So there are 3 first slide में 3 चीजें हैं. If you're talking about radiology एंड एनी ब्रांच जिसमें इक्विपमेंट्स महंगी महंगी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें हमेशा डीएनबी की ज़्यादा प्रेफरेंस जाएगी एज कम्पेयर टू एमडी। इसका बहुत सिंपल रीज़न है, बिकॉज यूजली डीएनबीज जैसे मैंने बताया कि इन हॉस्पिटल से की जाती है जहाँ पे यूजली मेडिकल कॉलेजेस से एसोसिएशन नहीं होता, there are more private hospitals of DNB as compared to government, and since there are more private hospitals of DNB, they have more and more better equipment. So for example, MD colleges which are more government, they have less amount of radiological equipment such as cardiac MRI, ठीक है। so ऐसी machines तुम्हारे पास usually होती नहीं है government colleges में, and if you are not exposed to all of these machines, specifically being radiology as a branch, so you won't get उस चीज़ का exposure, so you know it will be difficult for you to actually see उसके scans and all, ठीक है। so it's better for you to do radiology and other equipment related branches from a DNB institute because they are more private as compared to MD institute, because logically government institutes में there are less chances of heavy machinery being there, more advanced machinery being there, but this is just a general saying. There can be exceptions to everything, right? Secondly, if you talk about medicine and related branch, example pediatrics हो गया जिसमें there is no hands on. So medicine and related branches का मतलब क्या होता है, जहाँ पे hands on की requirement कम होती है, ठीक है, जिसमें तुम्हें hands on की टेंशन नहीं होती है, उसमें DNB is equivalent to MD, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। Whereas if you talk about surgery and related branches, जहाँ पे hands on आपको ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे आपको पता है कि hands on you need more and more practice on patients, you need active cutting, you need एक्टिव पेशेंट्स, तो वहाँ पे एमएस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, एमएस इज मोर बेटर एज कम्पेयर टू डीएनबी, बिकॉज डीएनबी में आपका हैंड्स ऑन उस मामले में बहुत कम हो जाता है। ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट डीएनबी, मैंने बोला ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होता है, सो you won't expect a first year resident to be cutting on a patients who are private hospital because they are actually paying a lot of amount, ठीक है। तो तुम खुद भी expect नहीं करोगे कि if you are paying 50,000 per day and you expect a first year resident to do a surgery, right? So that's what, so that's why MS ज़्यादा better होता है as compared to DNB if you are talking about surgery and related branches, but medicine related branches में DNB is equivalent to MD, right? The second simple rule states, एक 4-step rule approach है। सबसे पहली ब्रांच चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी माई ब्रांच वॉज मेडिसिन, आई वॉज श्योर कि मेरे को मेडिसिन करना है, राइट। सेकंड, एमडी वर्सेस डीएनबी बेस्ड ऑन दी अबव फंडा, तो ये वाला जो फंडे के बेसिस पे ओके, सो सिंस आई वॉज गोइंग फॉर मेडिसिन, सो डीएनबी एमडी कुछ भी चलता मुझे, ठीक है। तो डीएनबी एंड एमडी मेडिसिन मुझको कुछ भी चलता। उसमें नाउ यू हैव टू चूज होम सिटी एज कम्पेयर टू अवे सिटी। नाउ दिस इज समथिंग विच इज मतलब ये लोगों पे डिपेंड करता है। पीपल चूज मोर कॉमनली 60-40 रूल मान लो या 70-30 रूल मान लो, पीपल मोर दे आर लाइकली टू चूज होम सिटी एज कम्पेयर टू अवे सिटी, बिकॉज सिंपली रेजिडेंसी का स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, यू डोंट वांट टू ओवरबर्डन, राइट। सो पीपल ट्राई टू चूज कि हाँ जिस सिटी में वो रहते हैं प्लस एक्सपेंडिचर का खर्चा प्लस घर लेने का खर्चा प्लस स्ट्रेस, एक्सटर्नल स्ट्रेस, तो होम सिटी इज मोर प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू अवे सिटी। सो आई वांटेड टू स्टे इन दिल्ली, राइट। सो दैट्स व्हाई फॉर मी डीएनबी एमडी मेडिसिन from Delhi, right? This was my priority. But step 4 आता है कि if you are able to handle a lot of workload and toxicity, then choose a government college. And if you can't handle a lot of workload and toxicity, then choose a private college. So I was this category. I couldn't handle a lot of workload and toxicity, so that's why I wanted to choose a private college from a MD DNB institute in Delhi. Being from a hospital where I couldn't, according to my rank, couldn't get a MD college from Delhi, so I chose DNB medicine from a private college as compared to MD medicine from Delhi. This is just a simple rule which it can help you actually to choose your branch, right? It obviously depends upon a lot of factors apart from that also, but this is a baseline कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो उस चीज़ को। So अगर सपोज मैं मेडिसिन की बात करूँ, एक ऑर्डर बनता है कि MD medicine obviously in Delhi would be more preferred than DNB medicine in Delhi for me, right?
and MD medicine from a peripheral college will always be preferred from a DNB medicine from a peripheral college. So this is basically what is an order for me. Okay, so थोड़ी थोड़ी चीजें in all of these उसके बारे में बात करते हैं. First is academics. So what do you mean by academics when it comes to a PG thing? ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में academics का क्या मतलब होता है? First is bedside teaching, कि राउंड्स पे आपको कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा. केस प्रेजेंटेशन, जो केस देख रहे हो आप, जर्नल क्लब का प्रेजेंटेशन, सेमिनार प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम, छोटे छोटे MCQ एग्जाम्स. अब अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या फिर आप एक मेडिकल कॉलेज से अफिलिएटेड हो, तो यू कैन ऑल्सो टीच योर MBBS स्टूडेंट्स. So टीचिंग ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर academics only, so that you know it can help you remember better. थ्योरी क्लासेस, थोड़ी थोड़ी सारे एग्जामिनेशंस की, इन सब की थ्योरी क्लासेस. एंड ऑब्वियसली थीसिस वर्क, की थीसिस में आपके गाइड को गाइड हेल्प कर रहे हैं, कितना ज़्यादा काम करवा रहे हैं, आर दे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग यू एंड ऑल. सो ऑल ऑफ दिस कम्स इन academics, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट academics, obviously since MDMS colleges are affiliated to a medical colleges, that's why obviously academics MDMS में ज़्यादा होता है as compared to DNB. बट ये कहीं नहीं बोलते कि DNB में academics नहीं होते, that's wrong. It depends upon hospital to hospital. तो ये एक रूल है, बट ये नॉर्म नहीं है. तो MDMS कॉलेजेस भी ऐसे बहुत है जिसमें एक्चुअली कोई academics नहीं होता. DNB कॉलेजेस भी ऐसे बहुत है जिसमें एक्चुअली अच्छा खासा academics होता है. सो इट्स you need to choose, go visit the place and actually decide कि क्या इन चीज़ों में क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है. एंड एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि DNB केसेस मैंने ऑलरेडी बोला, क्योंकि दे आर मोर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सो दे हैव बेटर एंड रेयर केसेस बिकॉज दे आर एक्चुअली रेफर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, एज आई ऑलरेडी सेड. बिकॉज वो इन्वेस्टिगेट ढंग से कर नहीं पाते, फ्रॉम स्टेट 1 टू एंड तक डायग्नोसिस नहीं बना पाते, तो दे आर मोस्टली रेफर्ड टू द टर्शियरी हॉस्पिटल्स, सो दे गेट मोर रेयर केसेस, ठीक है. एंड दैट्स वाई you get to see those cases. That's why this is one of the advantages of DNB. But in the end, everything comes back to self study. If you even if you are in the best prestigious institute of India, for example AIIMS Delhi, if you don't do self study, in the end you only have to study, right? If you don't do self study, this whole drama is of no importance. Second is passing. ये बहुत famous question है कि DNB की passing, DNB के exam, right? So अगेन एज अ रूल लॉजिकली MDMS के पासिंग ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू DNB बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल फैक्ट कि MDMS के जो एग्जाम्स हैं वो आपके अपने हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जहाँ पूरी 3 साल आपने बताए हैं. वेरएज DNB के जो एग्जाम्स हैं, जो थ्योरी एग्जाम्स हैं, वो ऑल्दो होते सेम सिटी में है बट आपके कभी भी हॉस्पिटल में नहीं होते, डिफरेंट सेंटर होता है उसका. वेरएज प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो डिफरेंट सिटी में ही हो जाते हैं. सो दैट्स वाई इट्स मोर डिफिकल्ट टू पास a DNB exam as compared to an MD exam because all of the DNB exams are centralized. That means एक एग्जाम बनता है just like your board exams और 12th and 10th classes exactly same होता है. एक एग्जाम बनता है जो सारे DNB students throughout the India देते हैं, right? So that's why अगर तुम्हें पास करने की बात है तो obviously MDMS का easy होता है पास करना as compared to DNB. बट ये कहीं नहीं लिखा कि DNB पास नहीं कर सकते, DNB हर बंदा जो DNB कहता है उसमें से सब फेल हो जाते हैं. That's actually wrong. ऐसा कुछ भी नहीं होता. So इसका ये मिथ क्यों क्रिएट हुआ? दिस वॉज द बिगेस्ट मिथ. ये क्रिएट इसलिए हुआ था बिकॉज पहले क्या होता था, DNB के जो एडमिशन्स होते थे दे वर नॉट वाया नीट. उसके एडमिशन्स हमेशा इंटरव्यू बेसिस पे होते थे. तो जो लोग इंटरव्यू बेटर दे पाएंगे वो एक्चुअली आराम से उस हॉस्पिटल में एंटर कर जाते थे. वेरएज अब ऐसा कुछ भी नहीं होता. सब DNB एडमिशन्स, ऑल DNB एडमिशन्स आर वाया नीट, क्योंकि DNB एडमिशन्स नीट बेस्ड स्कोर पे होते हैं. दे आर मेरिट बेस्ड, दे आर नॉट इंटरव्यू बेस्ड. सो ऑब्वियसली यू विल एंटर with a better rank. That simply means कि जितने ज़्यादा पढ़ने वाले लोग उसी पर्टिकुलर ब्रांच, उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल, उसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाएंगे. सो बेटर पीपल आर एंटरिंग, तो ऑब्वियसली बेटर पासिंग रेट. सो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है. सो ये 2015-16 की बात है. अगर मैं सपोज मेडिसिन का एग्जांपल लेता हूँ, जनरल मेडिसिन में 48% का पासिंग रेट था 2015-16 में. सेम चीज़ अगर 2023 के अप्रैल सेशन में देखें, अगर सपोज जनरल मेडिसिन का पासिंग रेट इज 80%. So this is literally 50% का जंप है. 80% पासिंग रेट इज एक्चुअली वेरी गुड, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल कि पहले में क्योंकि एडमिशन्स ही इंटरव्यू बेसिस पे होते तो लॉजिकली उनका पासिंग रेट भी बहुत कम था. बट अब एक्चुअली क्योंकि एडमिशन्स नीट के थ्रू होते हैं, मेरिट बेसिस के थ्रू होते हैं, तो अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा पासिंग रेट होगा. दैट्स ऑल, राइट. एंड द एंड पढ़ने पे डिपेंड करता है. फिर आता है करियर स्कोप कि भाई क्या क्या करियर स्कोप हो सकते हैं. तो लोग टीचिंग पे बहुत बोलते हैं कि DNB, अगर तुमने DNB किया तो तुम पढ़ा नहीं सकते, बकवास. सो दिस इज अगेन फ्रॉम द NMC गाइडलाइंस 2021, सेम PDF से मैं बना रहा हूँ. तो सीनियर रेजिडेंट क्या है? ऑब्वियसली जिसने अपनी डिग्री MDMS एंड DNB से की है, ठीक है, वो सीनियर रेजिडेंट है. असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं?
फर्स्ट ऑब्वियसली यू शुड हैव दैट MDMS DNB की डिग्री, बस और कुछ नहीं करना. इफ यू आर 1 year सीनियर रेजिडेंट, 1 साल की आपको SRship करनी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो एज ईजी एज पॉसिबल. 1 year SRship सबको करनी है, चाहे वो MD हो, MS हो, DNB हो, आप सबको करनी है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो. अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो एसोसिएट प्रोफेसर आप पहले बात तो PG के 5 साल बाद ही बन सकते हो. MDMS DNB होने चाहिए. एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, आपको 4 साल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज 1 year ऑफ SRship, ठीक है, प्लस 4 years ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप. देन ओनली यू कैन एलिजिबल टू बिकम एन एसोसिएट प्रोफेसर. प्लस 2 रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए, प्लस वो एक स्टैट्स का कोर्स होता है वो करना होता है, एंड बायोमेडिकल रिसर्च का कोर्स. मतलब ये 2 कोर्सेज आपको करने होते हैं. ये NMC की अपनी गाइडलाइंस हैं. उसको करने के बाद भी ही आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो. सेम चीज़ बनता है आपको प्रोफेसर बनने के लिए भी. प्रोफेसर में भी MDMS DNB तो होना ही चाहिए, प्लस आपको वही 3 साल के लिए आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है टोटल ऑब्वियसली, क्योंकि 1 year SRship, ठीक है, 3 years आपका क्या कहते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, प्लस ये एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब भी आ गई. ठीक है, तो दिस इज 4 + 3 इज एक्चुअली 7, टोटल 7 and 8 years का पोस्ट PG एक्सपीरियंस चाहिए होता है. 4 रिसर्च पब्लिकेशन चाहिए. अगेन वो 2 कोर्सेज आपको करने होते हैं. तो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि DNB टीचिंग नहीं कर सकता. ये सब बकवास, सब फालतू बकवास है. इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये सफदरजंग कॉलेज का अभी इन्होंने 2000 अभी निकाला है लिटरली इनका पोस्ट. एज यू कैन सी इन्होंने अपनी SRship की वैकेंसीज निकाली थी, ठीक है, मेडिसिन में, फलाना ढमकाना में. एंड यू कैन लिटरली सी उन्होंने अपने जो टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स ऑफ पास MBBS विद PG डिग्री, डिप्लोमा, DNB इन मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड बाय NMC, बस सेम. सो एनीवन सिंस DNB इज एक्चुअली अ रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, यू कैन एक्चुअली डू टीचिंग अच्छे से. ये सब बकवास था पहले का था वो कि नहीं कर सकते थे, वो सब चेंज हो चुका है. सेकेंड एक करियर स्कोप की, अगर आपको सुपर स्पेशलिटी करना है बिल्कुल करो. सपोज मैंने सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दिया कि सपोज किसी ने मेडिसिन किया है, ठीक है, मेडिसिन इज करके आप कौन सी सुपर स्पेशलिटी कर सकते हो. ऑब्वियसली MD एंड DNB जनरल मेडिसिन किया है, आप कार्डियो, हेमाट कुछ भी कर सकते हो. इट इज सेम फॉर MD एंड DNB, सब कुछ सेम है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन MD एंड DNB. जो MD कर सकते हो DNB कर सकता है. देयर इज नो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस डूइंग जॉब. आई जस्ट वांटेड टू गिव एन एग्जांपल कि सपोज आपको टीचिंग में नहीं जाना, ठीक है, आपको मेडिकल कॉलेजेस से एफिलिएटेड नहीं होना, आपको अपनी सुपर स्पेशलिटी नहीं करनी, आपको डायरेक्टली जॉब करनी है, आप अपने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हो. दिस वाज मैक्स, ठीक है. मैक्स में मेरी एक टीचर है, ठीक है, शी इज लिटरली द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ मैक्स right now, 3 different things, ठीक है. And I just wanted to show she has done her DNB medicine. She's not an MD medicine, she's done DNB medicine, but still she's literally the best person I know right now, and she has so much experience. She's so wonderful at teaching and everything literally. So that is what I just wanted to tell you, that she's the medical director and she's done such great work in medicine. So you can do anything that you want. So ये सब पुराना ज़माना था कि you can't do jobs, you can't do teaching, you can't anything, you can literally do anything that you want to. The branch matter करता है and your skills matter, not the degree anymore. Obviously you just have to be an equivalent to whatever currently is going on in India. फिर जस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट को कंपेयर करना है अगर MDMS और DNB को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्कट वर्क होता है कि यहाँ से यहाँ सैम्पलिंग लेके जाना, ये करना, उधर से उधर फाइल वर्क फेंकना, ये सब MDMS का यूजली ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज MDMS गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, वहाँ पे इतनी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी नहीं है. अगर DNB की बात करूँ, इसमें स्कट वर्क, फाइल वर्क बहुत लेस होता है. अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ, वहाँ तो बिल्कुल भी फाइल वर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सब कुछ वो हो चुका है, इंटरनेट बेस्ड है, सब कुछ भी फाइल वर्क एग्जिस्ट नहीं करता. अगेन बिकॉज यहाँ पे स्कट वर्क बहुत कट डाउन हो चुका है. यू गेट मोर एंड मोर टाइम टू डू मेडिकल वर्क, यू मोर एंड मोर टाइम टू एक्चुअली फोकस ऑन being a doctor. That is why the working hours and the work life balance is much better in DNB as compared to MDMS. This is actually a rule, क्योंकि वैसे भी DNB की गाइडलाइंस फिक्स्ड है, although it is fixed कि आपको 8 घंटे तक काम करना है एक दिन के अंदर, 60 आवर्स से ज़्यादा, 40 to 60 आवर्स पर वीक से ज़्यादा नहीं कर सकते. बट येस, मोस्ट कॉलेजेस ट्राई टू एक्सीड, ये 60 से लेकर 80 भी हो जाता है. बट एज कम्पेयर टू MDMS इट इज़ ऑलवेज लेस, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लेस. कुछ जगहों पे तो पोस्ट ड्यूटी ऑफ भी अच्छा खासा मिलता है, 24 आवर्स की ड्यूटी होती है. तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर तुम्हें कंपेयर करना है, ऑब्वियसली DNB का बेटर होगा एज कम्पेयर टू MDMS. अगेन टॉक्सिसिटी, सिंस द वर्क लाइफ इज बेटर, द स्कट वर्क, द फाइल वर्क इज लेस, तो पीपल आर लेस फ्रस्ट्रेटेड ओवर इन DNB एज कम्पेयर टू MDMS. तो टॉक्सिसिटी ऑब्वियसली MDMS में ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू DNB, बट ये सब कंपैरिजन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हार्ड एंड फास्ट की टॉक्सिसिटी DNB में नहीं हो सकती. इट डिपेंड्स, बट दिस इज जस्ट अ ओवरऑल ब्रॉड कंपैरिजन. Hands on obviously, since the amount of since MDMS is more usually in the government hospitals and DNB is in the private hospital, obviously it is more likely कि MDMS में आपको ज़्यादा hands on मिलेगा, more patient
will allow to touch as compared to DNB, right? So this is something which is advantages for MDMS. People who want more hands-on, people who are actually interested in that, people who are in surgical branches, okay, they want to pursue any kind of surgery in the future, you know. So and they are interested in hands-on. Obviously, the MDMS will give you an added advantage on that, right? Learning and patient exposure is something which depends upon the person and the institute. लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन. अब आपके पास अगर एक जगह पे 100 केसेस आ रहे हैं और आप एक मतलब उसको सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग पेशेंट मैनेजमेंट पर से, जस्ट क्राउड को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है. और इफ यू इवन 100 में से अगर तुम 10 पेशेंट को भी देखने लग जाओ और अच्छे से सीख लो, तो दैट इज ऑल्सो दैट इज वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो नंबर ऑफ पेशेंट्स विल नेवर एवर मैटर. 100 हो या 10 हो, अगर तुम्हें 100 में से एक भी पेशेंट को मैनेज करना नहीं आता, तुम जरा क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारे कोई लर्निंग नहीं होती है. तो लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट यू सी. इन द लॉन्ग रन 10-20 साल में, yes, you see different kinds of patients, you see different cases, that's a different issue. But I'm talking about कि if you need to know the patient management more as compared to the crowd management per se, ठीक है. तो learning person पे depend करता है, not on the number of patients that you see. Patient care DNBs में ज़्यादा इसलिए होता है because अगेन प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट. प्राइवेट हॉस्पिटल तो पेशेंट केयर ज़्यादा टाइम मिलेगा. नंबर ऑफ पेशेंट्स एज कम्पेयर टू MDMS, मतलब एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन MDMS विल बी ऑब्वियसली लेस, ठीक है. सो यू कैन मोर फोकस ऑन पेशेंट मैनेजमेंट एंड दैट्स वाई पेशेंट केयर इज मोर बेटर एज कम्पेयर टू इन DNB एज कम्पेयर टू MDMS. फिर आता है पेशेंट एक्सपोजर पे. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट. अगर तुम्हारा MDMS का इंस्टीट्यूट अच्छा ही नहीं है, चाहे तो बेस्ट कोई ना कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट भी हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट. सो पेशेंट एक्सपोजर इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज़ क्या है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन से डॉक्टर्स बैठते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पर्सन हु इज एक्चुअली देयर इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड कहाँ पे लोकेटेड है, कितना पास है, एक्सेट्रा. देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, लर्निंग पर्सन पे डिपेंड करती है, राइट. Okay, so before you go to a place, you need to ask some basic questions. मतलब आपको obviously hospital को visit करके ही देखना पड़ेगा to actually see कि किस institute में जाना है, किस institute में नहीं जाना है. ये ऐसे आप videos देख के कभी भी नहीं समझ पाओगे. Once you go there, you actually see, you actually experience and try to ask the answer to these questions. टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यूजली MDMS में जो सीट्स होती हैं देर एक्चुअली 10-12 एंड DNB में एक हॉस्पिटल में मतलब एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट वन कोर्स. सपोज मेडिसिन में बात करूँ तो MDMS में 10-12 सीट्स होती हैं एक बारे में, वेयर एज टॉक अबाउट DNB यूजली 3 से 4 सीट्स होंगे एवरेज अमाउंट में, ठीक है. सो इससे एडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली 10 से 12 है, ठीक है. तो ऑल्दो यस इनका पेशेंट लोड ज़्यादा होता है, बट ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर वुड बी मच बेटर, ठीक है. तो दैट इज समथिंग विच इज एडवांटेजेस कि डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा बेटर होगा एंड द नंबर ऑफ ड्यूटीज दैट यू हैव टू डू, नाइट ड्यूटी स्पेसिफिकली, दे कंपैरेटिवली थोड़ा डिक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू DNB बिकॉज इसमें नंबर ऑफ सीट्स कम होती है. तो ये पूछना चाहिए. ड्यूटी डे कैसा होता है कि कितने वर्किंग आवर होते हैं. जैसे अब DNBs के यूजुअली वर्किंग आवर्स 8 to 5, 8 to 6, ठीक है, 9 to 5 ऐसे इस तरीके से फिक्स्ड होते हैं. बट MDMS में ऐसे कोई फिक्सेशंस नहीं होती. ये आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड DNB हॉस्पिटल जो एक्चुअली NMC की नॉर्म्स को फॉलो करता है, बिकॉज वो एक्चुअली बोलते हैं कि इतने तक फिक्स करना होता है, ठीक है. तो बट ऑब्वियसली इन द एंड इट डिपेंड्स अपॉन कितना तुम्हारा काम है, कितना पेशेंट वर्क हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ जनरल डे कि हाँ 9 to 5, 8 to 5 या 8 to 6 की जॉब की तरह होता है यूजली DNB. बट MDMS में ऐसा नहीं होता है. दे एक्चुअली एक्सटेंडेड टू 10-12 AM in the night and then you have to again come back. So that's why I said if you actually are interested in working more and you don't have any problem with the amount of workload because it depends upon the person to person, then you can actually doesn't matter for duty day. मतलब तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ता. But at least you need to know that. Third चीज nights and post duty off, ठीक है. This is also something which is per month कितनी नाइट लगती हैं. DNBs में usually 4 to 6 nights पर मंथ हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ब्रांच, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ टोटल सीट्स आर लेस जो कि DNB में यूजली होता है, तो नंबर ऑफ नाइट्स कैन ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. अगर सब 2 ही बंदे हैं तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट डे नाइट करेंगे, सीनियर्स होंगे थोड़े थोड़े, तो वही 6 से 8 नाइट भी हो सकती है, राइट. सो बट अगर कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली नाइट्स पर मंथ एंड पोस्ट ड्यूटी ऑफ का कॉन्सेप्ट यूजली DNB में ज़्यादा अप्लाई होता है एज कम्पेयर टू MDMS लॉजिकली, राइट. फिर यूनिट सिस्टम इज समथिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर डिवाइडेड इन यूनिट्स, कि एक यूनिट में कितना काम आता है एंड उसके हिसाब से तुम्हारी लर्निंग कैसी होती है, राइट. सो यूनिट सिस्टम इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट एंड यूनिट सिस्टम ऑल्सो डिसाइड्स वर्कलोड्स, राइट. कि कितना पर यूनिट में 20 पेशेंट हैं, 40 पेशेंट हैं, ऐसे 3 यूनिट्स हैं तो 120 पेशेंट्स पर, ऐसे करके, या फिर 80 पेशेंट्स पर
at every time is admitted in a particular department per se, right? So unit system is also important. फिर ये same चीज hands on is something which is important for surgical perspective, but yes medicine perspective में like ascitic tap, pleural tap, lumbar puncture, ठीक है, ये सब भी बहुत ज़्यादा important होता है. And independent OPD is something which is very very important for medicine people as compared to surgical people, because surgery में hands on something surgery मिलना ज़्यादा important है, whereas medicine people में they need independent OPD so that they can actually think, they can actually practice, they can actually prescribe drugs, which they obviously will need to do in future, right? So this is something which is important. फिर आती है sampling. Although this seems very menial, but this is actually a very very frustrating thing, because usually sampling, if they are done by nursing and nursing officers, or if they have phlebotomists in your hospitals, that actually saves you a lot of time, and you can actually focus that time on doing the particular medicine management rather than you go come आधा घंटा 2 घंटे लगेंगे पहले सैम्पलिंग करने में, एंड सैम्पलिंग करने के बाद तुम फिर जाके पेशेंट देखते हो. दैट एक्चुअली जस्ट एड्स ऑन टू योर वर्क. आई नो, मतलब ठीक है, कितना भी सैम्पलिंग इज नॉट समथिंग यू लर्न, दिस इज नॉट समथिंग अ लर्निंग एक्सपीरियंस, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा बर्डन एंड एक्स्ट्रा वर्क. सो यूजली DNB हॉस्पिटल में ये होता है कि नर्सिंग ऑफिसर, फ्लेबोटमिस्ट, ये सब सैम्पलिंग करते हैं, एंड यू एक्चुअली फोकस मोर ऑन मेडिसिन वर्क पर से. बट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, MDMS के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी यही होता है यूजली. बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चाहे वो DNB हो, MD हो, दे आर यूजली मोर डिपेंडेंट ऑन द रेजिडेंट्स टू एक्चुअली डू द सैम्पलिंग ऑल्सो, अगर इंटर्न्स नहीं है तो, राइट. ऑटोनॉमी का बेसिकली मतलब ये है कि तुम्हारे खुद मतलब राउंड्स पे अब तुम खुद डिसीजंस ले पा रहे हो कि नहीं, मतलब तुम्हें अलाउ किया जाता है कि तुम खुद पेशेंट्स देख लो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. पेशेंट आ रहा है, तुमने उसकी हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, फिर उसकी तुमने इन्वेस्टिगेशंस भरी, खुद ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फॉलोअप किया, कंसल्टेंट्स को देन इन्फॉर्म किया. दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑटोनॉमी, ठीक है. तो ये यूजुअली MDMS में बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज वाई एज कम्पेयर टू DNB. बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट एंड द पर्सन. अगर तुम एक्चुअली मतलब अपना दिखाओगे कि इंटरेस्ट, कि हाँ इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, तो वाई वुडंट कंसल्टेंट्स गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली do your practice. That's actually depends upon the person to person and institute to institute. So this is also something important, ठीक है. Good investigations बहुत important इसलिए हैं, specifically radiology तो मैंने already बता ही दिया, but सबसे important ये है, if you don't have good investigations available, it will delay the treatment, it will delay the diagnosis, ठीक है, एंड इट विल एक्चुअली एड ऑन टू द बर्डन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, प्लस बिल बनता रहेगा. तो दैट इज वाई दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू हैव गुड इन्वेस्टिगेशन एज सुन एज पॉसिबल सो यू कैन डायग्नोज, ट्रीट एंड follow up, ask the patient to follow up. So this is a very big advantage in DNB hospitals as compared to MDMS hospitals, because वहाँ पे investigations की lack बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, and plus बहुत ज़्यादा delay लगता है. But yes, पैसा obviously ज़्यादा लगेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड DDR इज अगेन समथिंग विच इज पर्सनल. हॉस्पिटल, द वॉशरूम, हाउ आर द हॉस्पिटल्स, वॉशरूम्स हैं कि नहीं, DDR एक सेफ प्लेस है कि नहीं, बिकॉज आजकल जितनी ज़्यादा डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस चल रहा है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड DDR, सिक्योरिटी, पर्सनल अवेलेबल, ये समथिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम सेफ फील कर रहे हो वर्क प्लेस में कि नहीं कर रहे हो, सोने की जगह है कि नहीं है, हॉस्पिटल्स वॉशरूम्स ढंग के हैं कि नहीं. दिस इज एक्चुअली समथिंग इंपॉर्टेंट. हॉस्टल फैसिलिटी इज समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यूजली MDMS हॉस्पिटल्स तो क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस से एसोसिएटेड है, तो दे विल गिव यू हॉस्टल्स, वेयर एज DNB में यूजली कुछ जगहें देती हैं, मतलब 20 से 40% हॉस्पिटल्स विल गिव यू स्पेसिफिक हॉस्टल्स टू स्टे. ऐसा होता है, बहुत बारी होता है, बट मोस्टली DNB हॉस्पिटल 60% के दे वोंट गिव यू एनी हॉस्टल, ठीक है. तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ओके. सो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड देयर पर्टिकुलर प्लेस. तो वो कहाँ रहते हैं, तो ये हॉस्टल, लिविंग स्टे, दिस जस्ट एड्स ऑन टू द बर्डन, राइट. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. देन हॉलीडेज, छुट्टी लेना. अब छुट्टी ऑल्दो तो मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज ने बोला है कि 30 छुट्टियां अलाउड होती हैं, एक्चुअली DNB रेजिडेंट्स को मिलती भी हैं, बट वही है डिपेंडिंग अपॉन दी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल. कुछ हॉस्पिटल्स वो भी नहीं देते हैं, बट ठीक है. अगर तुम ओवरऑल कंपेयर करो DNB में MDMS में, ऑब्वियसली छुट्टियां लेने की परमिशन DNB वालों को बेटर होती है एज कम्पेयर टू MDMS, जस्ट बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड बाय NBMS के स्ट्रक्चर में लिखा है ये सारी चीजें, ठीक है. तो दे ट्राई टू फॉलो इट, ऑल द हॉस्पिटल्स ट्राई टू फॉलो इट, एंड दैट्स वाई this is important, this holidays वाला. So you are more likely to get an off in DNB hospital as compared, because suppose किसी की तबीयत खराब हो गई, गला कुछ भी हो गया, so more likely to get an off in DNB hospitals as compared to MDMS, ठीक है. This is just a comparison, right. Insurance is something, if you get sick, if your family gets sick, does the hospital provide insurance? AIMS को मिलता है, usually private hospitals देते हैं ऐसे करके. तो this is also one of the criteria that you can see. Academics I've already talked about. You have to obviously see कि academics के जो हमने पहले बात की थी,
टॉक्सिसिटी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. स्टडी टाइम इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्री एग्जामिनेशन लीव के चक्कर क्या है, मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सैलरी, ठीक है. सो यूजली इट इज सेड कि MDMS वाले हॉस्पिटल्स की सैलरी आर ऑब्वियसली मोर देन द DNB हॉस्पिटल्स, बट ये कोई रूल है नहीं है, ऐसा नहीं है. DNB के बहुत हॉस्पिटल्स की सैलरी इज इक्विवेलेंट टू MDMS ऑल्सो. आई हैव सीन सैलरीज ऑफ 90,000 से लेकर 1 लाख ऑल्सो, विच इज even more than what MDMS hospitals are providing. ठीक है, many Delhi hospitals are actually providing 90,000 salaries also, 1 lakh salary, 1,05,000 salary भी provide to the UP hospitals. UP DNB hospitals also provide that. ठीक है, DNB ने अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है कि 40,000 तो देना ही देना है अपने रेजिडेंट्स को, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड. ठीक है, तो सैलरी इज यूजली मोर इन MDMS, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. देयर आर exceptions to that, and there are actually hospitals जो better MDMS से भी सैलरी प्रोवाइड करते हैं. थीसिस, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो यू नीड टू नो कि बिकॉज ये रूल है कि क्योंकि MDMS इज अ लर्निंग हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल. अकेडमिक्स में ऑलरेडी बात की थी कि ऑब्वियसली उनमें बेटर थीसिस होता है, क्योंकि यू नो दे गाइड, द गाइड्स आर एक्चुअली मोर फोकस्ड ऑन यू नो स्टडिंग. बट ऐसा कोई अगेन नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल. माई हॉस्पिटल हैज़ वेरी गुड, मतलब थीसिस अच्छे से चलता है. ठीक है, रिसर्च बहुत अच्छे से होता है हमारे हॉस्पिटल्स में. एंड प्लस यू गेट टू इन DNB हॉस्पिटल, सिंस दे आर मोर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यू हैव बेटर अगेन इन्वेस्टिगेशन, सो यू कैन use those investigations and put it in your thesis. So for example, I'm using FibroScan, people are using carotid intermedial thickness, again some people are using diffusion weighted imaging of MRI. ठीक है, cardiac CTs के भी मतलब वो तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब usually DRNB specialties can use cardiac CTs in their thesis. ठीक है, तो this is something which is important. These are some of the lists you can ask before you know go to a place, go to hospital, and you need to go to actually choose a better place for you. So overall summary of all pros and cons. Obviously MDMS का सबसे बड़ा प्रो यही है कि academics बहुत better है and easier passing है, ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा easy पास हो जाता है. ठीक है, this is as easy as possible. Cons यही है, बहुत poor working conditions है with respect to security नहीं है, गंदी जगहें हैं and etc etc. I've already discussed everything. And work life balance बहुत hectic है and higher rank पे usually मिलता है. DNB की सबसे बड़ा प्रो better work life balance, better working conditions and you know clinical exposure. You can follow up the patient from start to the end. ठीक है, एंड यू नो बेटर वर्किंग कंडीशंस का मतलब ये है कट वर्क कम है एंड ऑल राइट. एंड बस यही है कि पुअर अकेडमिक्स है, डिफिकल्ट इन पासिंग द एग्जाम्स एंड डिफिकल्ट एग्जाम्स ओवरऑल, राइट. सो दिस इज अ वेरी बेसिक समरी ऑफ प्रोज एंड कॉन. ओके, सो आई जस्ट मैंने पिछली बार की तरह जो 2023 एंड 24 की जो नीट की काउंसलिंग हुई है, जस्ट वांटेड टू शो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कंपेयरिंग मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी. सो अगर MDMS की बात करते हो फॉर MD रेडियो डायग्नोसिस एंड MD जनरल मेडिसिन, 2023 में यूजली राउंड 2000 पे बंद हो गया था एंड मेडिसिन 5000 पे बंद हो गया था. तो रेडियो 2000 के राउंड पे बंद हो गया था, मेडिसिन 5000 पे बंद हो गया था. 2024 में क्या हुआ, 24 में भी एग्जैक्टली सेम 2500 के राउंड पे रेडियो बंद हुआ एंड 5000 के राउंड पे. तो दोनों सेम ही है, 2K के राउंड पे बंद होता है एंड मेडिसिन 5K के राउंड पे बंद हो जाता है. अगर तुम सेम चीज़ को कंपेयर करो फ्रॉम DNB, सो DNB रेडियो डायग्नोसिस यूजली 6000 पे बंद होता है एंड मेडिसिन एक्जैक्टली 13,000 पे बंद होता है. ठीक है, वेयर एज 24 में एक्जैक्टली ये भी सेम, ये 5000 पे बंद हुआ एंड ये 12000 पे बंद हुआ, थोड़ा सा पीछे आया. उससे भी बड़ी बात ये हुई थी शिफ्ट. अगर तुम रैंक शिफ्ट देखते हो फ्रॉम 2023 के राउंड 1 से 2023 के राउंड 2 में, तो देयर वॉज अ शिफ्ट ऑफ 935 रैंक्स. तो लोगों का अपग्रेड हुआ था. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट मेडिसिन का स्पेसिफिकली, राउंड 1 एंड राउंड 2 में शिफ्ट हुआ ही नहीं, सिर्फ 75 रैंक से कोई शिफ्ट नहीं हुआ. 2024 के जो राउंड 1 राउंड 2 जो मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ क्योंकि मैंने यही किया था, देयर वाज नो शिफ्ट इन मेडिसिन एट ऑल. सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी स्कैरी. दिस इज जस्ट शोइंग दैट पीपल आर टेकिंग मोर DNB एज कम्पेयर टू MD. They are actually, DNB is something which is getting preferred, and this was a very crazy thing which was happening in 2024 की DNB को बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा था एज कम्पेयर टू MD, मतलब जो पहले नहीं मिलता था. इस बारी बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा, बहुत कंपैरिजन मिला है. तो ये अगेन डिप्लोमा अलग होता है DNB से. जैसे यहाँ पे डिप्लोमा की काउंसलिंग भी MDMS DNB के साथ ही होती है, NMC करवाता है. इनकी रैंक्स और नीचे की तरफ जाती है, 2-2 साल के कोर्सेज होते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. ठीक है, तो सब में होता है. ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का था and above 40 lakh वाला. तो basically this is just a comparison, ठीक है, to see actually what all rank tables are there. So just wanted to end the whole video by saying that you need to choose what you think is the best for you, not what others think is the best for you. So that's all. मतलब because in the end तुमने खुद की लाइफ जीनी है, कोई और तुम्हारी लाइफ आके नहीं जिएगा. So that's all. Thank you.